السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 1، جس میں ہم نے بات کی تھی مکتوب نگاری کے بارے میں اور مرزا غالب کی سوانح حیات کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے نثر نگاری کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ دلایا۔ ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے مرزا غالب کے لکھے ہوئے 2 خطوط کے بارے میں، خط نمبر 1 اور خط نمبر 2۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ کیا ہے خط نمبر 1؟ مرزا غالب نے خط نمبر 1 لکھا ہے اپنے دوست منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھیں، اس کو آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ جو لینگویج ہے یہ مرزا غالب کی نثر نگاری کی بہت ٹف لینگویج بھی ہے۔ آسان اور سادہ اس دور کے لیے تھی، لیکن یہ ادب کی لینگویج ہے۔ ٹھیک ہے، ادب بولتے ہیں لٹریچر کو۔ اب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں، ادب لٹریچر کی بھاشا کو کہتے ہیں۔ اردو کا جو لیٹسٹ لٹریچر تھا، جو بہت ہائر لینگویج میں استعمال کیا جاتا تھا، وہ زبان یہاں استعمال کی گئی ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ صاحب، تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا؟ وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے۔ شعر کہے، دیوان جمع کیے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے کہ وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے، اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا۔ ناگہاں نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط۔ بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا۔ اگرچہ اس صورت میں اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جہنم کے ہے، یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، اس کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم بمنشی ہرگوپال و تخلص بتفتہ ہو، آج آیا، اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بھی بلی مارو کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ واللہ، ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں مرزا غالب اپنے دوست کو کیا بات لکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب، تم جانتے ہو یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا واقع ہو گیا، جب ایک زمانہ تھا کہ تم اور ہم بہت اچھے دوست تھے، طرح طرح کے ہم دونوں میں بات چیتیں ہوتی تھیں، محبت ہوتی تھی، شعر کہتے تھے ہم دونوں آپس میں بیٹھ کر، دیوان بھی جمع کیے ہم نے۔ دیوان کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی شعر کہہ کر ایک بہت بڑا دیوان بنا لینا۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ بھی تھے جو ہمارے اور تمہارے بہت اچھے دلی کے دوست تھے، اور منشی نبی بخش ان کا نام تھا۔ انہوں نے نام بھی بتایا، کس کو؟ منشی ہرگوپال تفتہ کو نام بتایا کہ ان کا نام منشی نبی بخش تھا اور ان کا تخلص حقیر تھا، ہے نا؟ نہ تو وہ زمانہ رہا، اور نہ ہی وہ لوگ رہے، نہ ہی وہ معاملات رہے، اور نہ ہی وہ میل ملاپ، اختلاط کا مطلب میل ملاپ رہا، اور نہ ہی وہ انبساط کا مطلب خوشی، اور نہ ہی وہ خوشی رہی۔ بہت ہی مدت کے بعد دوسرا جنم ہم کو ملا، تو اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جہنم کے ہے۔ اب یہاں پر جو بعینہ مثل استعمال کرا گیا ہے، یہ اس لیے استعمال کرا گیا ہے کہ بعینہ مطلب ہو بہو، اور مثل مطلب اسی کے مانند۔ تو یہ بول رہے ہیں اگرچہ صورت اس جنم کی ہو بہو پہلی جہنم کی جیسی ہے، یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا اور اس کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی بالکل انہی کی طرح، انہی کے نام کے جیسے، منشی ہرگوپال، نام بھی منشی نبی بخش تھا اور تمہارا نام منشی ہرگوپال ہے، ان کا تخلص حقیر تھا اور تمہارا تخلص تفتہ ہے۔ تو آج میں آیا، اور جس شہر میں آیا ہوں اس کا نام بھی دلی ہے، مطلب وہی کی وہی صورتحال ہے، وہ بھی ایک زمانہ تھا اور یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ آج میں یہاں پر ہوں، اس کا نام بھی دلی ہے، اور اس محلے کا نام بلی مارو کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہاں پر وہ اس جنم کے دوست نہیں ملتے جو اس زمانے میں تھے میرے ساتھ۔ واللہ یہاں پر تو ڈھونڈنے کو مسلمان بھی نہیں ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، نہ تو کوئی امیر یہاں پر دوست ملتا ہے، نہ تو کوئی غریب ملتا ہے۔ ہاں، لیکن ڈھونڈنے سے کچھ البتہ باہر کے لوگ ضرور ہیں۔ اہل حرفہ مطلب جو باہر کے رہنے والے، جو الگ الگ پیشوں سے متعلق لوگ ہوتے ہیں نا، جو الگ الگ کام کرتے ہیں، وہ ہیں، اور اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں۔ ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں پر بس گئے ہیں۔ پھر آگے پیراگراف میں کیا لکھتے ہیں وہ؟ اب پوچھو کہ تو کیوں کر مسکین میں بیٹھا رہا۔ مسکن قدیم یعنی پرانے زمانے کے رہنے کی جگہ۔
साहब बंदा में हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ और यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार ब दीवार हैं घर हकीमों के और वो नौकर हैं। राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के घर हकीमों के और वो नौकर हैं किसके? राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के। राजा ने साहिबाने आलीशान से अहद ले लिया था कि बरवक्ते गारत दहली ये लोग बचे रहें। चुनाचे बाद फतह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा, वरना मैं और ये शहर कहाँ। मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए। मुबालगा से मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम इस बात को खिलाफ मत समझना, वाक़ई के गलत मत समझना, बल्कि यहाँ पर अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हरफा कोई भी नहीं है। मुफस्सिल हालात लिखते हुए डरता हूँ। मुलाजिमान क़िला पुरशिद्दत है और बास पुरस और दारोगीर में मुब्तला है। दारोगीर से मतलब पकड़ धकड़। मगर वो नौकर जो इस हंगाम में नौकर हुए हैं और हंगामे में शरीक रहे हैं। मैं गरीब शायर 10 बरस से लिखने और शेर की इस्लाह देने पर मुताल्लिक़ हुआ हूँ। ख्वाही इसकी नौकरी समझो, ख्वाही मजदूरी जानो। मतलब चाहे तुम इसको नौकरी समझ लो, चाहे तुम इसको मजदूरी जानो। इस फितना व आशूब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया, सिर्फ अशआर की खिदमत बजा लाता रहा और नज़र अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल गया। मेरा शहर में होना हक्काम को मालूम है, मगर चूँकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में से या मुखबिरों के बयान में से कोई बात नहीं पाई गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई। वरना जहाँ बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हुए या पकड़े हुए आए हैं, मेरी क्या हकीकत थी। कर्ज के अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है, रहा ये कि कोई मेरे पास आवे। शहर में है कौन जो आवे? घर के घर चराग बेचराग पड़े हैं, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। जो नीली बंदोबस्त 11 मई से आज तक यानी शंबा पंजुम दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। कुछ नेको बद का हाल मुझको मालूम नहीं, बल्कि हुनूज ऐसे उमूर की तरफ हक्काम को तवज्जो भी नहीं। देखिए अंजाम कार क्या होता है। यहाँ बाहर से अंदर कोई बगैर टिकट के आने जाने नहीं पाता। तुम ज़नहार यहाँ का इरादा ना करना। अभी देखा चाहिए मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और ये ख़त दिखा देना। इस वक्त तुम्हारा ख़त पहुँचा और इसी वक्त मैंने ये ख़त लिखकर डाक के हरकारे को दिया। में दूसरा पैराग्राफ जो दिया गया है, इसमें बताया है जो मिर्ज़ा गालिब हैं वो अपने दोस्त से कह रहे हैं कि मैं बहुत पुराने ज़माने से यहीं बैठा रहा हूँ, यहाँ से बाहर नहीं निकला। क्यों बैठा रहा ये मुझसे पूछो। यहाँ लिखा है ना कि अब पूछो कि तू क्यों कर मिस्किन कदीम में बैठा रहा। यानी वो अपने दोस्त से बोल रहे हैं पूछो ज़रा तुम कि मैं क्यों कर यहाँ पर इतने ज़माने से, इतने अरसे से यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ। मिस्किन रहने की जगह और कदीम पुरानी, तो इस पुरानी जगह में क्यों रह रहा हूँ। तो साहिब बंदा मैं हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 बरस से रह रहा हूँ और यहाँ पर करीब क्या करूँ बल्कि दीवार ब दीवार हैं, दीवार से दीवारें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि यहाँ के जो हकीम हैं वो घर हकीमों के हैं, लेकिन वो नौकर बन के रह रहे हैं, क्योंकि राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला ने साहिबाने आलीशान यानी अंग्रेज़ हुक्मरान, जो अंग्रेज़ लोग हुकूमत करते थे उस दौर में 1857 में, तो उनसे ये अहद ले लिया था, ये वादा ले लिया था कि दिल्ली शहर को फ़तह करने के बाद ये लोग बचे रहेंगे। चुनाचे राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा, है ना। फिर यहाँ पर कहते हैं कि मुफस्सल हाल क्या लिखूँ, तुम मेरी ये बात को गलत मत जानना। तो यहाँ पर अमीर गरीब सब निकल गया है, जो रह गए थे वो रह गए, जो निकाल दिए गए वो निकाल दिए गए। अब ना तो यहाँ पे कोई बाहर से रहने वाले लोग हैं, ना कोई जागीरदार है, ना कोई पेंशनदार है। फिर बता रहे हैं कि मैं तुम्हें मुफस्सिल हाल लिखते हुए बता रहा हूँ और मैं ये लिखते हुए डर भी रहा हूँ कि जो मुलाजिमान क़िला हैं वो पुरशिद्दत हैं और बाजपुर से दारोगीर में मुब्तला है। मतलब जो लोग इस हंगामे में शरीक रहे थे वो झगड़ों में मुब्तला हैं, पकड़ धकड़ में मुब्तला हैं। लेकिन मैं गरीब शायर, मुझको तो इन लोगों ने शायर जाना। मैं यहाँ पर 10 बरस से शेर लिख रहा हूँ, इस्लाह कर रहा हूँ, तो
अब तुम चाहे इसको मेरी नौकरी समझ लो, चाहे मेरी मजदूरी जान लो अंग्रेज़ हुक्मरान के लिए। इस फितना आशूब में ना तो मैंने किसी मसलहत में दखल दिया है और ना ही किसी पॉलिसी में अपना शुमारा गिनाया है, बल्कि मैं दिन भर यहाँ पर अशार की खिदमत बजाता रहा हूँ। अब और अपनी बेगुनाही पर ही नज़र मैंने बना रखी है कि मैं किसी तरह गुनहगार यहाँ पर ना नज़र आऊँ। मेरा शहर में होना हक्काम को मालूम है, यानी जो यहाँ पर हुकूमत करता है उसको मालूम है, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी ऐसी बात समझ में नहीं आई है, उनके पकड़ में नहीं आई है कि जिससे मैं गुनहगार पाया जाऊँ। तो वरना यहाँ पर तो बड़े बड़े जागीरदार हैं, सब पकड़े गए हैं। अब मेरी क्या हकीकत, लेकिन मैं इसी मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलता और सवार भी नहीं होता किसी गाड़ी पर, और ना तो कहीं जाता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये तो कि सवार हो जाऊँ कहीं चले जाऊँ, वरना मैं तो घर से बाहर निकलता ही नहीं। और रहा ये कि कोई मेरे पास आए तो शहर में है ही कौन जो आएगा मेरे पास, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं शहर में यहाँ पर। अब घर के घर जो हैं वो बेचराग पड़े हैं, यानी ऐसा घर जिसमें कोई रोशनी करने वाला ही नहीं है, वीरान हो गए हैं वो, है ना। मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, यानी गुनहगार जो हैं, जो गुनाह हैं, वो सियासतों में मुब्तला हो रहे हैं। और यहाँ पर याज़दहुम मई से, यानी 11 मई से लेकर आज तक, यानी शंबा पंजुम से दिसंबर 1857 तक बदस्तूर यही सब कुछ कायम है। इतने दिनों से यही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं मिर्ज़ा गालिब कि कुछ नेको बद का हाल तो मुझको मालूम नहीं, मतलब अच्छाई क्या हो रही है, बुराई क्या हो रही है, ये मुझे नहीं मालूम, बल्कि ऐसा वक्त यहाँ पर चल रहा है कि यहाँ पर कोई अंदर बाहर बगैर टिकट के आता जाता नहीं है। तो तुम बिल्कुल यहाँ पर मत आना। यहाँ पर आने के लिए जो भी यहाँ पर आता है तो उसको सज़ा दे दी जाती है। तो अभी तक मुसलमानों को जो इस शहर से चले गए थे उन्हें वापस आने का हुक्म भी नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं होता है या नहीं भी होता है। बहरहाल अब जो मेरे दोस्त मुंशी साहब हैं, तुम उनको मेरा सलाम कह देना और ये ख़त दिखा देना। ठीक है, इस वक्त तुम्हारा ये ख़त यहाँ पर पहुँचा और इसी वक्त मैंने ये ख़त लिख कर डाक के हरकारे को दे दिया। ये उन्होंने 5 दिसंबर 1857 शंबा 5 दिसंबर को लिखा था गालिब ने। अब इस तरह से आपको ये ख़त नंबर 1 के बारे में मैंने आपको मालूमात दी। इसके यहाँ पर लफ्ज़ मानी दिए गए हैं, ये लफ्ज़ मानी को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसकी मश्क़ी सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है, दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है। तो दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की मुराद क्या आती है यहाँ पर, यानी 1857 के हंगामों में अंग्रेज़ों ने दिल्ली में रहने वालों पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे। कत्ल गारत गिरी हुई थी, लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे इलाक़ों में चले गए थे। गालिब इन हंगामों में भी महफूज रहे, चुनाचे वो अपने ज़िंदा बचे रहने को दूसरा जन्म कहते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ। गालिब ने ये बात क्यों लिखी थी, क्योंकि दिल्ली शहर में अंग्रेज़ों ने अपने मुखबिर छोड़ रखे थे, जो उन्हें मुत्तला करते, जो इत्तला देते कि कौन उनके ख़िलाफ़ है और कौन अंग्रेज़ों का हामी है। अगर गालिब का ख़त में 1857 की तफसीलात लिखते तो मुमकिन है कि यह ख़त किसी ऐसे शख्स के हाथ पड़ जाता जो उसे इनाम के लालच में अंग्रेज़ों को पहुंचा देता, तो इससे गालिब को नुकसान पहुंचता। इसलिए वो अपने दोस्त को मुफस्सिल हाल नहीं लिख रहे थे, तफसील से नहीं लिख रहे थे। मुफस्सिल से मतलब डिटेल में बताना। सवाल नंबर 3 यहाँ क्या दिया हुआ है, इस फितना और आशूब में मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं। तो इस फितना आशूब में वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है ना, तो वो ये कहना चाह रहे थे गालिब के 1857 के हंगामों में उन्होंने किसी भी एतबार से शरीक नहीं हुए, घर में बैठे रहे और जो कुछ होता रहा उसको वो देखते रहे। ना उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना वो कभी जेल गए, ना उन्होंने कोई के साथ में कुछ बदतमीज़ी की किसी भी हुक्मरान के साथ में, तो वो इसमें दखल नहीं करते थे। तो यही बात इस सवाल में समझाई गई है, इसका जवाब यही है। सवाल नंबर 4 है, घर के घर बेचराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है। तो घर के घर बेचराग होने से मतलब है कि 1857 में बहुत से लोग घर छोड़कर चले गए थे, घर खाली थे और वहाँ कोई चिराग जलाने या रोशनी करने वाला नहीं था, यानी उन घरों पर वीरानी छाई हुई थी। सवाल नंबर 5 है, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहा है। गालिब ने इस जुमले में कहना चाहा है कि उन्होंने 1857 में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सा लिया था उन्हें अंग्रेज़ों ने मुजरिम समझा और सख्त सज़ाएं दी। ऐसे लोगों को फांसी दी गई या कैद खाने में डाल दिया गया।
تو مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، وہ لوگ سیاست کی بلی چڑھ جاتے ہیں اگر وہ لوگ ذرا سے بھی مجرم پائے جاتے ہیں، کس کی نظر میں؟ انگریزوں کی نظر میں۔ تو یہاں پر غالب نے اسی لیے اس طرح سے لکھا ہے۔ اس خط کی روشنی میں غالب کے زمانے پر ایک نوٹ لکھیے، یہ میں آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، اس کو آپ کو اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ کل ہم خط نمبر 2 کے بارے میں بات کریں گے۔ آج خط نمبر 1 میں اتنا ہی۔ اچھی طرح سے اس کو سنیے گا، پوری ویڈیو کو سمجھیے گا اور اس کے بعد میں لکھیے گا۔ باقی جو اس کی مشقی سوالات ہیں، لفظ مانی ہے، میں آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دیتی ہوں، یا پھر ڈسکرپشن باکس میں آپ اس کے لنک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔